Everyone, how are you all beta? Today we are starting with a new chapter. The name of the chapter is Newton Laws of Motion and it comes chapter number 4 in your book. Now first of all we should understand why we are going to study this chapter and what are the things we will study in this chapter. So we will see one by one. It is very interesting chapter. You will feel a lot of energy while studying this because most of the things related to us comes under this chapter. So we are starting with this chapter and here the first questions. Till now what you have studied, so till now we have studied the thing that is kinematics, and in kinematics we have studied basically two things. One is what? Rest, another is what? Motion. These two things we have studied till now in kinematics. In rest and motion you have studied about what? Displacement, velocity, acceleration. Mainly these three things we have studied. So what is kinematics? It is the branch of physics in which the cause of motion is not known to us. Okay? But now we will going to study the next thing, that is we are studying what? We are studying mechanics. This is the branch. Mechanics. First one is what? Kinematics, and second one is what? Dynamics. In dynamics we will study the cause of motion. Cause of motion. ठीक है, तो in dynamics we will study the cause of motion. Let us suppose if here is a ball, suppose this is a ball, ठीक है, and I hit it with something. मैं इसको क्या करूँ? Hit करूँ. It will start motion. So what is the cause? If somebody asks you what is the cause? Hitting of the ball. What is in physics? We will say that the real cause for hitting, what does the hit do? It applies a force. It applies what? Force. So this we will study in this chapter. And how the body is moving, that is the cause of motion. How, in which way it is moving, how it is changing its states, that comes under this. That is what? Laws of motion. So we are studying the Newton laws of motion. And first thing, what is force, which we are studying from class 9th onward? A force is a push or pull on an object. This is basically what? A push or pull on any object. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैं उसके ऊपर पुश लगाऊं, पुल लगाऊं. जैसे ये बोर्ड है, मैं इसके ऊपर या तो पुश करूं या इसको मैं खींचूं. ठीक है, इतनी सी चीज को हम क्या कहेंगे? फोर्स करेंगे. फोर्स क्या कर सकता है? तो फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट. वो क्या करेगा? उसको एक्सेलरेट कर सकता है. ठीक है, जैसे एग्जांपल, मेरे पास में यहाँ पर इस तरीके से मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है और इसके ऊपर मैंने ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अभी. अब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ? फोर्स लगने से आगे चला गया. तो दैट इट कैन एक्सेलरेट अ बॉडी. To accelerate, it can speed up also, it can speed down also. तो acceleration में क्या होगा? स्पीड बढ़ भी सकती है और स्पीड घट भी सकती है. As well as it can change the direction also. It can change the direction. How? Once again I am showing to you. This is the thing. If I will apply, it is moving in this direction. I am applying the force. It will go in this direction. So, do you able to understand? In this way, we can see that what can force do. Basically, it can accelerate. It can change up the speed, increase or decreases, or it can change the direction. So, what is force? That we have studied, and what we are going to study, the cause of force. What are the different things? Now, the next thing which comes to us is what we should understand. The definition. देखिए, यहाँ पर एक पर्सन क्या कर रहा है? एक कार को पुश कर रहा है. यहां पर क्या हुआ? एक बॉल बहुत तेज आ रही थी. फुटबॉलर क्या कर रहा है? उस बॉल को होल्ड ऑन कर रहा है. ये भी क्या है? फोर्स लग रहा है. एक साइकिल है, उसके ऊपर एक साइकिलिस्ट है, उसको स्पीड बढ़ा रहा है, घटा रहा है. एक बैट्समैन, आजकल आईपीएल चल रहा होगा, एक बैट्समैन है, वो क्या कर रहा है बेटा? बॉल को हिट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है. इन द सेम वे, तो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स एंड अगेन आई एम रिटिंग द. तो अगर आप 11th क्लास की डेफिनेशन देखें, थोड़ी सी स्टैंडर्ड डेफिनेशन, तो क्या होगी? अ फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट. ये क्या हो गया? एक एक्सटर्नल एफर्ट है which may move a body at rest or stop a moving body, or changes the speed of a moving body, or changes the direction of a moving body, or changes the shape and size of an object. तो ये सारी चीजें करता है फोर्स. तो क्या करता है? फोर्स कैन मूव a body at rest. ठीक है, फोर्स कैन स्टॉप a moving body, where we have right, it can change the speed, it can change the direction, it can change the shape and size of the body.
There are many more examples in which you can see that if there is a car and it is moving with a speed of 60 km per hour, example है 60 km per hour, and suddenly he sees that a boy is standing in front of him, he will starts applying a brake. क्या करेगा ये? एक ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक लगाने का मतलब क्या करेगा? ये रिटार्डेशन करेगा. क्या करेगा? ये रिटार्डेशन मतलब निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन लगाएगा, और इसकी स्पीड यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कितनी हो जाएगी? अगर कार यहाँ पर पहुँच रही है तो इस जगह पर इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? v2 कितनी होनी चाहिए? 0. अगर ये v1 था मतलब ये इनिशियल थी, फाइनल थी. तो क्या करा? फोर्स लगाया. ब्रेक ने क्या करा? एक प्रकार का फोर्स लगाया. तो ब्रेक क्या हुआ? एक प्रकार का फोर्स हुआ. ठीक है. In the morning, your mother gives you lots of what? Food or apple or anything. So what does she do? She cut the apple by applying what? Force on a knife and apple, and it will break it out. तो समझ में आया? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम पढ़ेंगे. अब अगली चीज़ जो हमारे पास में आती है वो देखते हैं. Next thing is what? Types of force. So basically we can divide the forces in two groups. Furthermore, we can more divide it out, and the types of forces which comes is what? The first one is what? Contact force. The first one is what? Contact force. The first one is your what? Contact force, and the second one is what? Non-contact force. So these are the two basic classification. That is, one is what? Contact, and another one is what? Non-contact. And in these classification we can see that in contact force we can see that first one is what? Frictional force. Next one is what? You will study what? Tension. You will study what? Spring forces. You will study what? Normal reactions, or normal force or normal reaction. ठीक है. तो these are the few categories of what? Contact forces. We will explain it. Now next one is what? Non-contact force. Is what? First one is what? Magnetic force, electrostatic force, and gravitational force. Gravitational force. ठीक है. So these are the two basic classification in which we are dividing it. Now we can see that what are the non-contact force. Examples of non-contact force. Non-contact force. Take an example. We will study in class 11th is what? Gravitational force. ठीक है. तो हम क्लास 11th में क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. एक चैप्टर है हमारे पास में. तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है बेसिकली. तो अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ये सपोज कर लीजिए अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है. यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ. अगर यहाँ पर कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये किधर लगेगा? इसमें फोर्स इधर की तरफ. तो दिस टाइप ऑफ फोर्स इज सेड टू बी व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स. तो द बॉडीज फोर्स इज एक्सर्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. तो दिस इज नोन एज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. आगे ये मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप क्लास 12th में देखेंगे. कहाँ देखेंगे? 12th में देखेंगे. ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दो के दोनों फोर्सेस किसके खातिर जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू व्हाट? चार्जेस. ठीक है. तो चार्जेस के मोशंस के खातिर इसमें रेस्ट में रहेंगे, उसमें कहाँ रहेंगे? मोशन में रहेंगे. अब हम जो पढ़ेंगे इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा और देखते हैं जिसमें हमारे बैलेंस और अनबैलेंस आ जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आ जाता है. देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? अर्थ पे लग रहा है. ठीक है. ये किसके खातिर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? ड्यू टू मासेस. ये क्या होता है? बिकॉज ऑफ व्हाट? मास. तो ये किसके खातिर जनरेट होता है? मासेस के खातिर. मासेस ऑफ टू बॉडीज. अच्छा, फॉर्मूला देखें ग्रेविटेशनल फोर्स का. तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है. इफ देयर इज व्हाट मास m1 एंड हियर इज व्हाट? हियर इज समवन मास व्हाट? m2 and they are separated by some distance what? r, then F is equal to how much? G m1 m2 upon r square. ठीक है. ये हमने पढ़ रखा था. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. ठीक है. इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है. अगला देखिए, अगला आया इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एग्जाम्पल क्या? आप एक अपने कॉम को ले लीजिए, इस तरीके से आप एक कंघा ले लीजिए और उसको बालों पर रब करिए और पेपर के पीसेस देखिए वो क्या करेगा? स्ट्रक करेगा. तो ये हमारा आ गया एग्जाम्पल. इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप दो चार्जेस ले लेंगे, एक कोई चार्ज Q1, एक कोई दूसरा चार्ज Q2, and the separation between them is what? R. So then the force even studied in class 12 is equal to K times of Q1 Q2 upon R square. अच्छा, this force is always attractive in nature.
ये हमेशा कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव, बट दिस मे बी व्हाट, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। ये दोनों नेचर को शो करेगा, अट्रैक्शन को भी शो करेगा एज वेल एज रिपल्शन को भी ये शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फोर्स यू हैव सीन, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, फ्रिक्शन। वी आर वॉकिंग बिकॉज ऑफ व्हाट, देयर इज सम व्हाट, फ्रिक्शन। द टायर्स ऑफ द साइकिल इज व्हाट, बिकम फ्लैटर बिकॉज ऑफ व्हाट, फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, next which comes to us what is, again we can divide the contact force in two parts, ठीक है। one is what, balanced, another is what, unbalanced। balanced force is a type of a force in which the net force is found to be what, 0। net force अगर हम इसके अंदर देखें तो F net कितना पाया जाएगा, 0। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये कोई जैसा बनाया हुआ है कोई ब्लॉक सरफेस पे, एक कोई हमने ब्लॉक रख दिया जिसका मास m kg था, तो इस पे नीचे क्या लगेगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर क्या लगेगा इस पे, नॉर्मल रिएक्शन। इधर अगर मान लीजिए आपने एक फोर्स लगाया है, कोई अप्लाइड फोर्स लगाया है, तो ये बॉडी इधर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी, क्या लगाएगी, फ्रिक्शन। इफ क्या हो जाए, n इज इक्वल टू हाउ मच, mg हो जाए फर्स्ट, एंड बेटा अगर आपके पास में एफ आर फ्रिक्शन बराबर हो जाए एफ अप्लाइड के, देन दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड फोर्स। तो ये किसकी कंडीशन हो गई, बैलेंस फोर्सेस की। तो इस लिखा हुआ इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, कोई जरूरी नहीं है टू हो और मोर देन टू, इफ टू और मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, एंड if both the forces are equal and their resultant force acting on the body is what, 0, then such type of force is said to be what, balanced force. In unbalanced force, it is need not to be given that the sum of all these forces is what, 0, they are not equal to 0। तो वहां बेटा not equal to क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करेगी, आगे भी कर सकती है, ऊपर भी कर सकती है, साइड में भी कर सकती है, ऊपर नीचे तो नहीं कर सकती, ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वो मूव करेगी। तो ये हमारा हुआ कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो क्या कॉज होता है, क्या क्या फोर्सेस होते हैं, ये हमने देखा। अब आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कि न्यूटन ने कैसे खोजा ये डिफरेंट मोशंस, कैसे मोशन बॉडी कर रही है। तो उसके लिए उसका जो स्टार्टिंग था वो कहीं पर बैठा था और एक एप्पल का ट्री था, ठीक है, एप्पल का पेड़ था, एप्पल क्या हुआ, फॉल करा, एंड देन ही हैज लॉज of motion he has generated in this way, he has generated the laws of motion। उसके दिमाग में एक सोच आया कि कुछ तो है जो इसको नीचे गिरा रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो अपनी तरफ खींच रही है, किसी चीज़ को ऊपर फेंका तो ग्रेविटेशन, रोटेशन, बहुत सारी चीज़ उसने सोची। तो आगे चल के उसने लॉज ऑफ मोशन इस तरीके से लॉज ऑफ मोशन की उसने खोज करना शुरू करी। आगे देखते हैं। नाउ आफ्टर दिस बेसिकली आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने, थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए इनको, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, was an English scientist in 1667, ठीक है, he developed what, 3 laws of motion, ठीक है, and describes the movement of object in terms of forces। मतलब क्या है बेसिकली बेटा, लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन क्या करते हैं कि किसी बॉडी का मोशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फोर्स। तो मूवमेंट को किसी बॉडी के मूवमेंट को फोर्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करा गया है, फोर्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करना ही लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। एंड आज तक ये लॉज क्या है, ट्रू है, इनको कोई भी फेल नहीं कर पाया है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ आफ्टर दिस देयर वाज द फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। शॉर्ट में लिखा हुआ है। फर्स्ट लॉ क्या है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will stay at rest, an object in motion will stay in motion until and unless any external force is applied on it or any unbalanced force is applied on it। मतलब क्या है, मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस रूम को छोड़ के जाऊं और मैं कल लौट के आऊं तो मुझे इस रूम की सारी चीज़ें वैसी की वैसी दिखाई पड़ेंगी।
जैसे मैं आज छोड़ के गया वैसा ही कल ये आपको पूरा लेक्चर बोर्ड उस तरीके से दिखाई पड़ेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। और अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी, ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। ये सेकंड वाला पार्ट कहाँ पॉसिबल है? स्पेस पे। आप स्पेस पे जाइए और वहां पर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रैंडमली जिस वेलोसिटी से आपने छोड़ा वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगा, रैंडम डायरेक्शंस वो चूज करता रहेगा। अर्थ पे क्यों नहीं पॉसिबल ये चीज? बिकॉज अर्थ पे ग्रेविटी लगती है, एयर का फ्रिक्शन लगता है, तो बहुत सारे अदर सोर्सेज लगते हैं बेटा, इसलिए अर्थ पे वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्पेस पे ये चीज पॉसिबल है। तो अभी देखेंगे इसके बारे में। First law is also explained by Galileo and it is also said to be what? Law of inertia also. We will explain it out in further slides. Now what is second law? Second law is what? Simply it gives what? Mass into acceleration. It is the product of what? Mass into acceleration. तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे F is equal to how much? M into A. But बहुत डिटेल में हम जाएंगे इसमें, तो हम आगे देखेंगे कि F क्या होता है? dP over dt. थोड़ा सा अभी आएगा। P is what? Momentum. P is what? Momentum. ठीक है। थर्ड लॉ, वी ऑल आर वेरी मच फैमिलियर, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम यहां पर एक्शन और रिएक्शन के बारे में देखेंगे। इसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ में क्या क्या मेन चीज है वो चीज समझना शुरू है। एक लॉ हमको क्वालिटी बता रहा है और एक लॉ हमको इसमें क्वांटिटी बता रहा है। तो इसमें फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ ये तो एक क्या बता रहे हैं? ये क्वालिटी बता रहे हैं। क्वालिटी मीन्स व्हाट? इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट रिमेन्स। तो मोशन होना एक बॉडी की क्या है? विशेषता है। लेकिन सेकंड लॉ जो है, जो सेकंड लॉ है वो हमको इसमें क्या बता रहा है? वो क्वांटिटी बता रहा है। सेकंड लॉ अपने को क्या बता रहा है? इसमें क्वांटिटी बताता है। तो दिस यू शुड अंडरस्टैंड। फर्स्ट एंड थर्ड डिटरमाइंस व्हाट? क्वालिटी, बट सेकंड स्टेट्स एज व्हाट? क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। Then I've said that first law is also known as what? Inertia. But first law की definition फिर से हमने लिख रखी है कि an object remains in state of rest or in uniform motion in a straight line unless compelled to change state by applied force. तो जरा देखिए, इसका हम प्रूफ करते हैं, फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। और उससे नीचे हमारे पास एग्जाम्पल है। ये एक ग्लास टम्बलर है। क्या है? ये एक ग्लास है, शीशे का ग्लास है। इसके ऊपर एक ये क्या है? कार्डबोर्ड शीट है। क्या है ये? कोई एक कार्डबोर्ड शीट है और यहां पर एक कॉइन रखा हुआ है। अब इनिशियली दिस एंड दिस ऑल द थ्री थिंग्स इन व्हाट? रेस्ट। मैंने क्या करा? इस पे हिट करा तो क्या हुआ? कॉइन नीचे गिर गया। मतलब कॉइन रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही है। हमने फोर्स किस पे लगाया? सिर्फ बॉडी पे। तो बॉडी डज नॉट चेंज स्टेट्स ऑफ रेस्ट, इट फॉल डाउन। फॉल डाउन क्या हुआ? बिकॉज ऑफ व्हाट? ग्रेविटी। तो इसको हम कहते हैं इनर्शिया। इतनी चीज को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। यहां पर थोड़ा अलग डेफिनेशन है। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड व्हाट? इनर्शिया। एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ व्हाट? इनर्शिया। तो इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। अगर रेस्ट पे है तो बॉडी अभी भी कहाँ जा रही है? रेस्ट पे जा रही है। ये वर्टिकल मोशन का मतलब मत समझिए बेटा, तो ग्रेविटी आगे जाके क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। ठीक है, ये हो गया। हमको फर्स्ट लॉ का प्रूफ करना है। वी हैव टू ड्राइव द फर्स्ट लॉ। तो जरा देखिए, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए कि इफ अ बॉडी इज इट रेस्ट देन इट रिमेन्स इन मोशन, देन इट रिमेन्स इन रेस्ट। इफ अ बॉडी इज इन मोशन देन इट रिमेन्स इन मोशन। इट मीन्स the initial velocity of the body must be equal to what? Final velocity. This we have to prove here. First law. यही तो हुआ मैथमेटिकल मीनिंग कि अगर बॉडी u0 है तो vb क्या होगा? 0। u10 है तो vb कितना होगा? 10। u15 है तो कितना होगा? 15। मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए। इसको प्रूफ करना चाहिए। बट देयर इज अ कंडीशन दैट बॉडी मस्ट अप्लाइड अ कांस्टेंट फोर्स एंड दैट कांस्टेंट फोर्स स्टेट दैट
इसका फोर्स कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन है जो F एक्सटर्नल होता है फर्स्ट लॉ के लिए वो बेटा कितना होता है, 0 होता है। F एक्सटर्नल कितना होता है, 0। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, वी विल स्टडी इट लेटर, बट जनरली वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। वी हैव स्टडीड लेटर इन द प्रीवियस स्लाइड्स। Mass of any body is not equal to what, 0. So which is equal to what, acceleration is equal to 0. And what is the formula for acceleration, change in velocity upon time taken is equal to what, 0. Time will go there, so that is v minus u is equal to what, 0. थोड़ा सा देख लेते हैं, तो that is v is equal to u is equal to 0, or we can say that v is equal to what, u. So this is your what, this is your derivation of first law, ठीक है। Although we will drive this formula, हम F is equal to ma कैसे आए इसको ड्राइव करेंगे अभी आगे, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड में हम। तो क्या है, वही चीज़ फिर से आ गई है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन्स स्टे इन रेस्ट एंड मोशन। तो सेम डेफिनेशन है, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है तब तक, अनलेस मतलब एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्सटर्नल कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। तो ये उसको दोबारा हमने देख लिया। नेक्स्ट आफ्टर दैट ये एग्जाम्पल है कि कहीं पर कुछ पंपकिन्स रखे हुए हैं, आज भी छोड़ दीजिए, कल भी छोड़ दिए, परसों छोड़ दिए, तो हमेशा उसी में रहेंगे, तो वही इसका एग्जाम्पल हो गया। देन आफ्टर दैट देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया। देज आर व्हाट, यू आर इफ strike hits a pill coin on a carom board, the lowest coin move out and due to inertia of rest the other coin fall down। मतलब क्या हो गया कि आप कैरम बोर्ड पे करेंगे तो हिट करेंगे तो क्या कंडीशन हो जाएगी, उस कंडीशन पे वो मूव करेगा और रेस्ट कहाँ रहेंगे, अपनी ही जगह पर रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इस वीडियो पॉज करके प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, किसके हो गए, इनर्शिया के हो गए, जिसको आप देखिएगा। लेटर ऑन हम देखते हैं क्या निकल के आता है हमारे पास में। हम लोग अब ये देखते हैं कि इनर्शिया कितने टाइप का होता है। तो नेक्स्ट आया हमारे पास में टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो बेसिकली इट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज व्हाट, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ व्हाट, डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट देखते हैं क्या होता है। Many times you have seen that if you are traveling in a bus or in metros, what you will see that here is a hanger type substance and some hooks are placed in that। यहाँ पर कुछ एक हुक्स लगे हुए होते हैं इस तरह से, और आप उनको पकड़ के रखते हैं। यहाँ पर कोई पर्सन है, ठीक है, और वो उसको होल्ड ऑन करके रखता है। इफ द बस विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन फॉरवर्ड, what you will see that this person will move in what, backward direction। so this is what, this is the case of what, inertia। तो inertia of rest को समझते हैं। inertia of rest का क्या है, if you are sitting inside a train and the train suddenly starts, then what occurs, your foot will start moving in forward direction but your body will be in what, rest, so you will fall backward। this is the example of what, inertia of rest। in the same way inertia of motion का example क्या है, इसी example को हम स्लाइड सा चेंज कर देते हैं। तो inertia of motion को अगर आप देखेंगे बेटा तो क्या निकल के आएगा, inertia of motion में सेम केस है, सेम सिस्टम है, बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी और रैंडम वेलोसिटी वी कैन नॉट से, एंड सडनली द ड्राइवर स्टॉप्स or suddenly he applies a brake, then what occurs, you will fall forward direction because your whole body with respect to the bus is what, at rest, but when he stops your foot will initially stop out but your upper body will not stop, so you will fall forward। that is the example of what, inertia of motion। many examples you can see। and the third case is what, inertia of direction, inertia of direction। what is in the inertia of direction, suppose you are moving on to Kullu Manali or in Nainital, any place you are moving, and there are sharp turns in this way and your bus is in this way, it is moving। what you will feel in this situation, if you are sitting inside the bus in this way, so initially the bus is moving in this direction, but the thing is that after some times bus will reach
at this stage, so your velocity is in this direction but the bus is moving in this direction, so you will feel a jerk in this direction. आपको इस डायरेक्शन में एक फील होगा कि आप बाहर की तरफ जा रहे हैं. इसका एग्जाम्पल मैं करके आपको दिखाता हूँ. एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि मेरे पास मिल गया, थोड़ा सा चाय पिया हुआ है, ये मेरे पास में एक बस है और ध्यान से देखिए, आप इतने बड़ा पैसेंजर हो गए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एंड द बस इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देयर इज नो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. नाउ व्हाट अकर्स, नाउ द थिंग इज दैट यू बस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इट इज टेकिंग अ शार्प टर्न, बट what you will see that if the bus is moving in direction, you will start falling in that direction because your direction is this and bus direction is what, this. So this is the cause of what, the inertia of direction. तो इसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर आपको ये एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि आपका डायरेक्शन ये था और बस का, अभी दोनों का डायरेक्शन सेम है, थोड़े टाइम बाद में ये ऐसे करके मूव करने लगी, तो आप क्या, जो बस की बाउंड्री होती है उसकी तरफ स्ट्राइक करना शुरू करते हैं. तो दीज आर द three types of inertias. Now we are moving on to the next thing, beta. Next slide. This is a very good example. Why should we wear what? We should wear the seat belts. What occurs if the car is moving with very high speed? What occurs? It will strike to this, and you will get a jerk in the same way, and your seat will help you to strike with that thing. तो ये एक इसका example है, इसमें लिखा हुआ है because of what, inertia ये होता है. Now there is a beautiful relationship what, inertia and mass. इसका एग्जाम्पल समझते हैं, फिर इसको समझते हैं. सपोज कर लीजिए मेरे सामने से एक साइड पे ट्रक आ रहा है रोड पे, और सामने से इस साइड से क्या आ रहा है, साइकिल आ रही है. तो राइट साइड से मान लीजिए, इस साइड से क्या आ रहा है बेटा, ट्रक आ रहा है, और इस साइड से क्या आ रही है, मेरे पास में साइकिल आ रही है, और मेरे को बचने का कोई भी साधन नहीं है, मुझे किसी एक चीज़ को रोकना है. तो व्हाट इज ईजियर फॉर मी टू स्टॉप, कौन सी चीज़ को मैं रोकने के लिए आसानी रहेगी. तो ऑब्वियस सी बात है, मैं साइकिल को आसानी से फोर्स लगा के रोक सकता हूं, लेकिन अगर बस में या ट्रक में फोर्स लगाऊंगा तो शायद मैं नहीं रहूंगा. इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है, द मास ऑफ द साइकिल इज व्हाट, लेसर देन द मास ऑफ व्हाट, बस. तो इसमें क्या होता है, जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उस बॉडी में इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होता है, और उसको रोक पाना, उसको स्टॉप कर पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा टफ होता है. तो यही चीज यहां लिखी हुई, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया इन द फर्स्ट टू लाइंस, एंड हियर इज व्हाट, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द मेजर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स required to change the state of body. What is change the state of body? Both the things are coming towards me and I want to stop them. So that is what the change in the state of body, and the force required to change the state of heavier body. Heavier body कौन था, ट्रक, is more than the force required to change the state of body of what, lighter body. And this is because the mass of the body is heavier, is more than that of what, lighter body, and there the concept comes, the mass of the body is the measure of what, inertia. तो क्या बताया गया, it is impossible for me to stop a truck which is coming with 60 km/h. I will not able to stop it until unless I will become Hancock or any other Hollywood hero. ठीक है, तो पॉसिबल बेटा, जनरल केसेस में पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए उसको स्टॉप कर पाना, बट मेरे लिए थोड़ी पॉसिबिलिटी है कि मैं साइकिल को रोक सकता हूं, मेरे को कम चोट लगेगी, क्योंकि साइकिल का इनर्शिया क्या है, कम है, क्योंकि उसका मास क्या है, कम है, एज कंपेयर टू दैट ऑफ व्हाट, द थिंग दैट इज नोन एज व्हाट, ट्रक. यहां पर दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं. बड़े ब्लॉक में ज्यादा फोर्स लगेगा, छोटे ब्लॉक में कम फोर्स लगेगा. थोड़ा सा और समझते हैं. F इज इक्वल टू जनरली क्या होता है, M इंटू ए होता है. तो यहां से A क्या हो गया, F अपॉन M हो गया. तो देयर द कंसेप्ट इज हेयर, मास से. ठीक है, आगे देखते हैं. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, मोमेंटम. आई हैव सेड टू यू अर्लियर कि मोमेंटम क्या होता है. तो मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एनी बॉडी. सिंपल भाषा में कहें तो मोमेंटम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एनी बॉडी. क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एनी बॉडी. किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन है उसको हम कहते हैं. तो यहां शब्द क्या आया है, क्वांटिटी. अभी देखिएगा, समझिएगा क्या है ये मतलब. ठीक है, दिस इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एनी बॉडी. तो ये बेसिक डेफिनेशन होती है जो आप समझ सकते हैं. अब यहाँ देखिए, तो मोमेंटम क्या होता है, बेसिकली मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जो आप पढ़ चुके हैं. इसको हम जनरली लेटर P से लिखते हैं. तो P क्या निकल के आ गया हमारे पास में, M इंटू वी, वेयर M इज व्हाट, मास, एंड V इज व्हाट, वेलोसिटी.
ठीक है। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन वेलोसिटी इज जीरो, सो इट्स मोमेंटम इज आल्सो व्हाट, जीरो। एसआई यूनिट क्या होगी, मास की एसआई यूनिट क्या होती है भाई, केजी, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, तो वही इसकी एसआई यूनिट है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक ट्रक है जो कि लो स्पीड से मूव कर रहा है, वो किसी आदमी को किल कर सकता है स्टैंडिंग ऑन इट्स पाथ बिकॉज इट्स मास इज व्हाट, हैवियर। तो मोमेंटम मास के ऊपर भी डिपेंड करता है एज वेल एज मोमेंटम वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हमारे पास में, बुलेट का इंपैक्ट, ये सारी चीजें दी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। अब इसकी मदद से, मोमेंटम की मदद से हम सेकंड लॉ आता है हमारे पास में, तो हमने बेटा पीछे फर्स्ट लॉ देखा। सेकंड लॉ क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिकली जो हमारी बुक्स में वो क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बट अभी हम देखेंगे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो क्या होता है, द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, दैट इज एफ इज इक्वल टू हाउ मच, एम ए। और यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया है, वेयर m इज व्हाट इन केजी एंड एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड द यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन, ठीक है, एंड दिस इज द थिंग। तो अगर आप इसकी यूनिट देखेंगे न्यूटन को, तो 1 न्यूटन अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट, सेकेंड लॉ का छोटा सा फॉर्मूला हमने बताया, चीजें बताई क्या होती हैं ये। आगे देखते हैं, वी हैव टू ड्राइव दिस रिलेशनशिप कि कैसे आया। तो सेकेंड लॉ की दूसरी डेफिनेशन होती है सेकेंड लॉ में, और वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकेंड लॉ क्या होता है, दैट इज फोर्स इज व्हाट, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। सिंपल सी डेफिनेशन, एक लाइन की मैंने लिख दी। अब क्या निकल के आया, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो क्या पाया जाता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp ओवर व्हाट, dt। रेट को हम लिखते हैं d ओवर dt से। हेयर P इज व्हाट, P इज इक्वल टू हाउ मच, m इंटू v। अगर मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट करूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ मच, इट कम्स टू बी हाउ मच, d, जस्ट अ मिनट, इट कम्स टू बी हाउ मच, d mv over what, dt। लेट्स सपोज द कांस्टेंट कम्स टू बी हाउ मच। अगर मैं कांस्टेंट की बात कर लूं तो यहां पर हमारे पास में जो कांस्टेंट है कोई k है, तो f इज इक्वल टू हाउ मच, k d ओवर dt ऑफ हाउ मच, m इंटू b। तो देखिए यहां से दो चीजें हम पाएंगे। क्या दो चीजें देखेंगे, वो देखते हैं। दो चीजें हम ये पाएंगे कि हमारे पास जो f आया है वो कितना आया है, k टाइम्स ऑफ dp ओवर व्हाट, dt, एंड फ्रॉम दिस p वी कैन चेंज द फॉर्मूला इन दिस वे। वंस इज व्हाट, मास को हमने कैसा मान लिया, कांस्टेंट कर लिया, और दूसरी बार हमने क्या कर लिया, हमने वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लिया। मतलब एक बार मास कांस्टेंट है तो वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी, और एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट तो वेरिएबल कौन है, ये। तो अब जो हमारा फॉर्मूले में आएगा तो वो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k टाइम्स ऑफ m v ओवर व्हाट, dt। m इज कांस्टेंट, इट विल कम आउटसाइड, तो F इज इक्वल टू k इंटू m, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज dv ओवर व्हाट, dt। एंड व्हाट इज dv ओवर dt, एक्सेलरेशन। तो F कितना निकल के आ गया यहाँ पर हमारे पास में, k m इंटू व्हाट, a, क्योंकि सिंस dv ओवर dt क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्सेलरेशन। बट इन दिस केस व्हाट वी कैन सी दैट, इन दिस केस कि when v is constant, कौन कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, और m क्या है यहां पर, वेरिएबल है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो आपके पास में f है वो हो जाएगा k टाइम्स ऑफ
d/dt ऑफ व्हाट mv, और ये v क्या था हमारे पास में यहाँ पर कांस्टेंट है, और ये क्या है वेरिएबल है, तो हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे तो ये v बाहर आ जाएगा, तो k टाइम्स ऑफ v और d/dt ऑफ व्हाट m, तो दिस इज योर अनदर फॉर्मूला. The question comes where we are using this formula. This we are using in conveyor belts. कहाँ पर यूज करते हैं हम जनरली? Conveyor belts. क्या होती है बेटा? एक इस तरीके से एक बेल्ट होती है, दो पुलिस लगी होती हैं, और यहाँ पर कोई एक इस तरीके से बेल्ट होती है जो क्या करती है, इसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ होता है और वो इस तरीके से मूव करता है, ग्रेजुअली इसमें सामान गिरता रहता है नीचे, तो मास यहाँ पर क्या होता है चेंज होता रहता है, यहाँ ऊपर से मास इसके ऊपर गिरता रहता है, एक कोई सिस्टम ऐसे बना हुआ होता है. ठीक है, ये आप एक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. टाइप ऑफ व्हाट आयरन ओर से हम क्या करते हैं, निकालते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं, तो वो सिस्टम हो गया. अच्छा, अगली चीज़ अगर हम देखें तो इस फोर्स को, दोनों फोर्सेस को क्या हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं? तो देखिए हम क्या फोर्स को तीन डिफरेंट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट आउट कर सकते हैं, तो आंसर है यस. तो देखिए हम जो यूज करेंगे बेसिकली वो ये यूज करेंगे, दैट इज F इज इक्वल टू हाउ मच m इंटू ए. के कितना ले लिया हमने, जनरली 1 ले लिया. अब मैं इसको रिजॉल्व करूं तीन एक्सिस में, तो a को क्या लिख सकता हूं मैं, वेक्टर a को लिख सकता हूं axi प्लस ayj प्लस azk. तो मेरे पास में ऐसे ही वेक्टर f को क्या लिख सकता हूं, वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, तो ये हो सकता है fxi प्लस fyj प्लस fzk. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, तो ये क्या हो गया, ये हो गया fxi प्लस fyj प्लस fzk इज इक्वल टू m, तो बाहर आ गया axi फिर y एंड देन फिर व्हाट वैल्यूज रख दी हमने z यूनिट वेक्टर k. तो यहाँ से fx कितना निकल के आ गया, तो आंसर है fx आ गया max. ठीक है, ऐसे ही fy कितना आ गया, may. ऐसे ही fz कितना आ गया, mazz आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से हम सेकंड लॉ को करते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट अ 1400, मतलब मास दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये दे रखा है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है, f का सॉल्व है वहां पर, f इज इक्वल टू हाउ मच बेटा, m इंटू ए. हेयर m आपको गिवन है और a आपको दे रखा है, तो सिंपल m कितना दे रखा है, आंसर आया 1400. a कितना दे रखा है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट दे, सिंपल क्वेश्चन, हालांकि 11th क्लास में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है, तो हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट 2800 न्यूटन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट थिंग विच कम्स अस टू व्हाट, सम FBD बेस्ड क्वेश्चंस. तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में यहां से काम करेंगे, दैट इज व्हाट फ्री बॉडी बेस्ड diagrams and questions. So we will start with these things, we will continue. So there are few slides, one is this, and we will have solution of this question, how to find out the acceleration. So first of all, before starting this, we have to study about what, FBD. And what is this? This is known as what, free body diagram. इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं. वी विल स्टार्ट दिस, देयर आर फ्यू स्लाइड, देन वी विल गो थ्रू विद व्हाट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थैंक यू बेटा.